Hello everyone, welcome to Legal Update, and today's topic for discussion is trial court must examine jurisdiction before allowing amendment. Why in news? Recently, the Bombay High Court in Akshay Quenim versus Roy Savio Pereira held that a trial court must first examine whether it inherently lacks jurisdiction to entertain a suit before considering an amendment application. If jurisdiction is absent, the plaint must be returned regardless of amendments. Background of the case: the plaintiff filed a civil suit seeking rupees 50 lakh for alleged defamation on Instagram and a public apology. The defendant filed an application under Order 7 Rule 10 of the Civil Procedure Code claiming the suit was commercial in nature and outside the trial court's jurisdiction. The plaintiff simultaneously filed an amendment application to modify the valuation clause in the plaint. The trial court initially decided to hear the amendment application first, which was challenged in the High Court. What were the court observations? Justice Valmiki Menzies held that the trial court must first examine the plaint as originally filed to determine if it inherently lacked jurisdiction. The court clarified that the effect of any amendment must be considered alongside the original plaint to see if jurisdiction could be conferred. Jurisdiction of the court must be tested against the plaint as originally filed. If the suit remains commercial in nature despite amendments, it must be returned to the appropriate commercial court. Amendment applications cannot override statutory limitations on jurisdiction. Both applications, amendment and return of plaint, should be considered together to avoid procedural errors. Provisions involved are: first, Order 7 Rule 10 of CPC, which mandates a court at any stage of suit can return a plaint to be presented to the proper court if it lacks jurisdiction to hear the case. Second, Order 7 Rule 11 of CPC, which allows a court to summarily dismiss a plaint if specific legal grounds for rejection are met, such as lack of cause of action or suit being barred by law. It's the time for practice question. What key rule regarding plaints and amendments did the case carve out? Option A: courts can grant amendment first without checking jurisdiction. Option B: court must check if they have jurisdiction before considering amendments. Option C: amendment applications automatically fix jurisdiction issues. And option D: plaint must always be rejected regardless of amendments. Pin down your answers in the comment section below. संशोधन की अनुमति देने से पहले ट्रायल कोर्ट को अधिकार क्षेत्र की जांच करनी चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्षय क्वेनिम वर्सेस रॉय सैवियो परेरा मामले में यह निर्णय दिया कि ट्रायल कोर्ट को सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि क्या उसके पास मुकदमे की सुनवाई के लिए अधिकार क्षेत्र है या नहीं। उसके बाद ही सुधार आवेदन पर विचार करना चाहिए। यदि अधिकार क्षेत्र अनुपस्थित है तो बिना सुधार के मुकदमे को वापस कर दिया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि को। वादी ने इंस्टाग्राम पर कथित मानहानि के लिए 50 लाख रुपए का हर्जाना और सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए सिविल मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 10 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि मुकदमा वाणिज्यिक प्रकृति का था और ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। वादी ने इसके साथ ही वाद पत्र में मूल्यांकन खंड को संशोधित करने के लिए एक संशोधन आवेदन भी दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने पहले संशोधन आवेदन पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। चलिए अब जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मैनेजस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को पहले मूल रूप से दायर किए गए वाद पत्र की जांच करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इसमें स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी संशोधन के प्रभाव पर मूल शिकायत के साथ विचार किया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि क्या अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सकता है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का परीक्षण मूल रूप से दायर शिकायत के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि संशोधनों के बावजूद मुकदमा व्यावसायिक प्रकृति का बना रहता है तो उसे उपयुक्त वाणिज्यिक न्यायालय में वापस भेजा जाना चाहिए। संशोधन आवेदन क्षेत्राधिकार पर वैधानिक सीमाओं को दरकिनार नहीं कर सकते। प्रक्रियागत त्रुटियों से बचने के लिए दोनों आवेदनों, संशोधन और वाद पत्र की वापसी पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस मामले में शामिल प्रावधानों के विषय में। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 के आदेश 7 नियम 10 में यह अनिवार्य किया गया है कि यदि किसी मुकदमे के किसी भी चरण में
न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय, आर्थिक या विषय वस्तु नहीं है तो वह वाद को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अदालत को विशेष कानूनी कारणों के आधार पर एक परिवाद जो कि वादी द्वारा दायर प्रारंभिक दस्तावेज है को संक्षेप में खारिज करने का अधिकार होता है, जैसे कि कार्रवाई का कारण न होना या मुकदमा कानूनी रूप से निषेधित होना। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को। इस मामले में शिकायतों और संशोधनों के संबंध में कौन सा प्रमुख नियम बनाया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, न्यायालय अधिकार क्षेत्र की जांच के बिना पहले संशोधन को मंजूरी दे सकते हैं। ऑप्शन बी, न्यायालयों को संशोधनों पर विचार करने से पहले यह जांचना चाहिए कि उनके पास अधिकार क्षेत्र है या नहीं। ऑप्शन सी, संशोधन आवेदन स्वतः ही अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को ठीक कर देते हैं। ऑप्शन डी, संशोधनों की परवाह किए बिना शिकायत को हमेशा खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।